Today we shall do the lesson The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Here are some points about the author. The story is written by Khushwant Singh. He was born on 2nd February 1915, Hadali in Pakistan. He died on 20th March 2014 in Sujan Singh Park, Delhi. His wife was Kaval Malik, and he completed his education from Punjab University, King's College, London, the Dixon Poon College of Law, and St. Stephen College. And he is awarded with Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and Punjab Ratna Award. Class, The Portrait of a Lady, the theme, this poem, this story, it's a part of an autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait. You know, pen portrait, creating a picture through the medium of words. Okay, when we give you something, some details about a person, so you just start creating a picture of that person in your mind. That is called pen portrait. So the author draws a pen portrait of his grandmother. He gives us so many details about his grandmother that the readers create a picture of his grandmother in their minds and beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. Plus, the relationship between the grandparents and grandchildren is always very special. Okay, every person who has spent time with his grandparents, they know that the relation between with the grandparents is different from what they have with their parents. Grandparents love their children, their grandchildren even more. Okay, sometimes they pamper them. Okay, maximum grandparents होते they pamper their grandchildren. Okay, over pamper them. Okay, even they sometimes when the parents scold their children, they stop them from doing so. Okay, they have some extra love for them. So here actually the writer, the narrator is living with his grandmother in village, as his parents were in the city and they were still struggling, okay, to get adjust in the city and to arrange a home and arranging the things in the town. In the meantime, the narrator was living with his grandmother in the village. Okay, so grandmother, how the grandmother used to take care of him, okay, and what kind of relationship they both used to share. It's all about that. Okay, so in other words, we can say that this story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. Okay, ट्रिब्यूट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट होता है जो हम किसी को देते हैं, है ना, उपलब्धि जिसे हम कहते हैं. The story gives a picture of human relationships. It's a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to their grandchildren. और क्लास ये ना एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है and it's a true and it's true for everyone कि when the people come into their old age, when they become old and they have their grandchildren, the old people have enough time to spend with their grandchildren, but the grandchildren जो होते हैं, they do not have that much time to spend with their grandparents. Okay, and the grandparents they do want कि parents, their children, their grandchildren come to them, spend time with them, play with them, talk to them. But generally it is seen कि when the grandchildren are quite small, जब तक वो बहुत छोटे होते हैं, 6, 7, 8 years तक के ही होते हैं ज़्यादातर, तब तक तो till then they love to spend time with their grandparents. But as they grow old, है ना, जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू मे बी के ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द थिंग्स surrounding them and the burden of studies, and since they have more things to do, so their attention, their attachment towards their grandparents, it's, you know, it seems to get weaker. So here we get to know कि such kind of things did happen in Khushwant Singh's life also.
Okay, here we shall meet the main character of the story is obviously grandmother. She is Khushwant Singh's grandmother. She is extremely religious person and a kind lady. She was short, fat and slightly bent because of old age. बुढ़ापे में थोड़ी कमर जो उनकी झुक गई है, ठीक है. फेस कैसा है? इट इज़ फुल ऑफ wrinkles and she was always dressed in spotless white clothes. स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स जो है वो दो चीज़ों का है, ठीक है. एक तो हमारे कस्टम के अंदर जो वाइट क्लोथ्स है, जो विडोज होती हैं, द लेडीज हुज हस्बैंड्स डाई, ठीक है, तो दे आर नॉट सपोज टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स. तो यहाँ हेयर ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर वॉज अ विडोज, दैट्स वाई शी यूज टू वियर वाइट साड़ी एंड स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स. जो है यहाँ पे स्पॉटलेस वर्ड जो है एक तरीके से ये भी है कि शी वॉज एन एक्सट्रीमली प्योर एंड रिलीजियस लेडी which did who did not have any whims or any उनके there was nothing negative about his grandmother. जो नैरेटर की जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज एक्सट्रीमली, शी वॉज रियली अ लेडी ऑफ हाई कैरेक्टर. तो नैरेटर वो कहता है स्पॉटलेस, लाइक हर कैरेक्टर शी यूज टू वियर वाइट साड़ी, spotless white. In the village, she took care of all the needs of the author when she was a child. सारी चीज़ एक छोटे बच्चे की क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको सुबह उठाना, तैयार करना, देन उसको स्कूल लेके जाना, खिलाना पिलाना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना. तो शी यूज टू डू एवरीथिंग फॉर द for her grandchild Khushwant Singh. And he recounts his childhood days and his relationship with his grandmother. तो नैरेटर अपनी मदर के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उसके अच्छे बचपन के दिन थे उनको वो याद करता है. तो ऑथर बताता है कि किस तरीके से वो पहले स्टार्टिंग में है कि वो अपनी मदर को, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों को रिमेंबर करता है. कहते हैं उसकी ग्रैंड मदर जो थी, शी वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी एंड फॉर द 20 years ऑथर हैड नॉन हिज ग्रैंड मदर एंड ही हैड फाउंड हर ओल्ड एंड रिंकल्ड. तो नैरेटर जो कह रहा है कि 20 years तक उसने अपनी ग्रैंड मदर, मतलब मीन्स व्हेन द नैरेटर अटेन्ड द एज ऑफ 20 years द ग्रैंड मदर डाइड. Okay, and for those 20 years he did not find any change in grandmother. She always used to appear the same for him. 20 साल का समय उसने बिताया अपनी ग्रैंड मदर के साथ, लेकिन 20 सालों में ग्रैंड मदर में कुछ भी चेंजेस उसको नहीं लगे. उसको लगा ग्रैंड मदर तो हमेशा से ऐसी ही थी, बूढ़ी थी, और उनका फेस जो था वो कैसा था, रिंकल्ड था. शी वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड. इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड शी हैड अ हस्बैंड. ओके, तो एक बच्चा था जब वो, तो उसको कभी इस चीज़ का कभी ये नहीं रहा कि कभी दादी कभी यंग रही होगी, प्रिटी रही होगी, सुंदर होगी. मतलब ये तो रहा होगा कि चलो ग्रैंड मदर कभी ब्यूटीफुल थी, ठीक है, लेकिन ग्रैंड मदर प्रिटी, प्रिटी तो हम यंग लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स ना. तो उसको कभी भी ऐसा, मतलब दिस थॉट केम एज रिवोल्टिंग टू हिम ना, कि इट वॉज क्वाइट हार्ड टू बिलीव कि ग्रैंड मदर कभी इतनी सुंदर थी, यंग थी. नहीं, ग्रैंड मदर तो हमेशा ऐसी थी. ग्रैंड मदर का मतलब तो बूढ़ी औरत होता है. ओके, इट वॉज लाइक दैट. तो उसके माइंड में ये था, छोटी. तो क्या ग्रैंड मदर कभी यंग भी थी, बच्चे हमारे जैसी भी थी, तो उसको नहीं, इस चीज़ को मतलब वो समझ नहीं पा रहा था. उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसने कभी अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा. उसने सिर्फ ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट देखा जो कि उनके हॉल में टंगा हुआ था, ठीक है. हॉल के ड्राइंग रूम की वॉल पे एक उनका पिक्चर टंगा हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी बांधी हुई थी, ढीले ढीले कपड़े थे, और वो उन्होंने लंबी सी उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी. तो वो ऐसा लगता था कम से कम 100 साल बूढ़े होंगे, ऐसा लगता था. इट अपीयर्ड. ओके, तो वो उसको कभी ऐसा, मतलब जो अगर कोई उस पिक्चर को देखे तो कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये इंसान कभी यंग रहा होगा, ठीक है. कभी वो यंग था, कभी उसके बच्चे थे, वाइफ थी, नहीं. उसको ऐसा लगता है कि ये एक आदमी जो था, इतनी बड़ी उम्र का आदमी है, इसके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं. वाइफ और चिल्ड्रन वाला नहीं था, वो वाला पार्ट तो था ही नहीं उसकी लाइफ में, ठीक है. तो ये कभी क्वाइट अम्यूजिंग है, एक बच्चे की सोच है, द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. फिर ऑथर की ग्रैंड मदर है, तो उसकी ग्रैंड मदर जो थी यंग है, प्रिटी है. ये थॉट उसको काफ़ी रिवोल्टिंग लगता था, हार्ड टू बिलीव लगता था. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि वो शॉर्ट थी, फैट, स्लाइटली बेंट इन स्ट्रेचर इज द स्ट्रक्चर ओनली. एंड उसके फेस में क्या था, क्रिस क्रॉस थे, लाइन इधर से इधर इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी रिंकल्स की. यू कैन इमेजिन एन ओल्ड फेस. एंड उसके वाइट जो थे, ओल्ड एज के कारण उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, जो कि उनके इस रिंकल्ड फेस पे फैले रहते थे, स्कैटर्ड होते रहते थे.
ठीक है। तो हॉबल करती थी ग्रैंड मदर, हॉबल का मतलब वो उनकी जो वॉक थी वो स्मूथ नहीं थी, ठीक है। वो बूढ़ी हो चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, ठीक है। और वो एकदम सीधे नहीं चल पाती थी, जैसे पैरों को अपने अपने बूढ़े लोग होते हैं ना, अपना पैर जो होता है टिका टिका, एक पैर पे प्रेशर डाल के फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता था जैसे हॉबल कर रही है सारे घर में, ठीक है। और वो उनका जो पोज था वो रहता था कि अपना एक हाथ में तो उनके माला रहती थी, जाप की जो माला होती है उसमें सारे दिन जाप करती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी, और एक हाथ जो था उनका कमर पे टिका रहता था अपनी कमर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो करती थी, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस लेडी, एंड शी ऑलवेज केप्ट चैंटिंग एंड इनऑडिबल विच कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ऐसी चीज आवाज जिसको आप सुन नहीं पा रहे, मन मन में, है ना। तो वो मन मन में गुनगुनाती रहती थी प्रेयर्स, पूजा पाठ करती रहती थी, भगवान का नाम जपती रहती थी, ठीक है। टू द ऑथर शी कुड नेवर बीन प्रिटी बट शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी। देखो ये कितना अच्छा वर्ड उसने यूज किया अपनी दादी के लिए, डिवाइन ब्यूटी, कि दादी वैसे तो सुंदर, मैं खूबसूरत कहूँ, जो हम यंग लेडीज किसी की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, नहीं, वो अपनी दादी को कहते हैं डिवाइन। उनके अंदर एक देवताओं जैसी सुंदरता थी, मतलब उनका जो चेहरा कोई उनको देखे तो जैसे किसी का मन होता है ना इसकी पूजा करे, इनका आदर सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे, तो दादी के चेहरे को देखकर किसी के भी मन में ऐसा भाव आ सकता है। तो ठीक है, तो दैट इज वाई ही हैज कॉल्ड हर अ डिवाइन ब्यूटी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। विंटर लैंडस्केप में क्या होता है, माउंटेन्स के अंदर जब विंटर्स आ जाती हैं तो माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, तो हर तरफ क्या होता है, देर इज कंप्लीट पीस ऑल अराउंड, कोई हलचल नहीं महसूस देती, और हर तरफ से वाइट वाइट और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, एंड इट इज़ पीसफुल, क्योंकि मूवमेंट सब बंद हो जाती हैं माउंटेन्स पे ना। और जबकि ग्रीन, जब जिस समय क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं, समर्स होते हैं, स्प्रिंग होता है, तो माउंटेन्स पे भी क्या होती है, धूप भी खिलती है, वहाँ बारिशें भी होती हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन होता है, बर्ड्स होते हैं, लोग आते हैं, तो लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है ना, मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन विंटर में ये सब नहीं होता, शांति है। तो दादी को भी उसने कंपेयर किया है विंटर में, एक तो क्यों, क्योंकि दादी की जो उम्र थी वो अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने, और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और उन्होंने अपने इस विडोइज्म को, अपने जो वैधव्य था, है ना, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत ही ग्रेस के साथ अपना लिया था। उनका मन बहुत ही शांत था, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था, कभी किसी के साथ चुगली शोर शराबा करते उसने अपनी दादी को नहीं देखा। उनकी दादी जो थी वो उसको अपने आप में लगता है कि शी वॉज अ डिवाइन ब्यूटी। जैसे कई लोग, कई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना जिनको लड़ने झगड़ने का शौक होता है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं था, उसकी दादी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, और उनको देख करके उसको ऐसा लगता जैसे कि कोई वो डिवाइन ब्यूटी हो, ठीक है। उसने अपनी दादी को ऐसे कंपेयर किया है। अब वो अपने चाइल्डहुड को दादी के साथ रिकॉल करते हुए कहता है कि दे बोथ वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स। उसके पेरेंट्स उसको छोड़ गए थे दादी के साथ, तो वो शिफ्ट हो गए थे सिटी में। विलेज में ग्रैंड मदर जो थी उसकी, शी टू